Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. Chapter 15 Sampling Distribution. Today lecture number 6. The topic is sampling distribution of sample mean x bar. In this lecture students I will discuss sampling with replacement process using sample size n equal to 2. साइज 2 से सैंपल्स ड्रॉ करेंगे विद रिप्लेसमेंट से। और आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं क्या डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 15 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन यूजिंग सैंपल साइज n equal to 2 by sampling with replacement. The contents of this lecture is based only on exercise question for the topic sampling distribution of sample mean x bar using sample size n equal to 2 by sampling with replacement. Now students, I am going to start exercise question for sampling distribution of sample mean x bar. In the statement of this exercise question, take all possible samples of size 2 with replacement from a population values 1, 3, 5, 7. In the first part, find the mean of each sample. In the second part, make sampling distribution of sample mean x bar. Also find its mean of x bar, variance sigma square x bar, and standard error sigma x bar. So in the second step students, we have to calculate the value of mu x bar, which is the mean of sampling distribution, and variance of x bar, that is sigma square x bar, and standard error, that is the standard deviation of the sampling distribution of mean, which is denoted by sigma x bar. In the third part, find the mean mu, variance sigma square, and standard deviation sigma of the population values 1, 3, 5, 7 के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे mean mu, variance कैलकुलेट करेंगे which is denoted by sigma square, and standard deviation sigma for this population values. In the fourth part, verify the results. First result जो हमने verify करना है sampling distribution और population values से. First is the mean of x bar, which is equal to E of x bar, which is equal to mu. So mean of x bar equal to mu, and in the second verification, sigma square x bar equal to sigma square divided by n. Or last verification, that is the sigma x bar, which is also denoted by standard error of x bar equal to sigma upon root n. तो इन द 4 स्टेप्स स्टूडेंट्स वी हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, और हमने वन बाय वन तमाम पार्ट्स को जो है वो इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे, और इसकी वेरिफिकेशंस को जो है वो कंप्लीटली प्रूव करेंगे. Exercise question, we have the population values x equal to 1, 3, 5 and 7, and the population size capital N equal to 4 and sample size small n equal to 2, and sampling is done with replacement. In the first step students, we have to calculate the total samples, and using formulas sampling with replacement is capital N power small n, और capital N equal to 4 और power 2 लेंगे. sample size is 2, 4 की power 2 which is 16. तो total sample students हम लोग draw करेंगे 16. in the first column students हम लोग write करेंगे serial numbers, और इसमें हम लोग write करेंगे total 16 samples को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and serial number 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. Now students, in the second column we draw the samples, और samples की heading देंगे, और then हम लोग जो है वो calculate करेंगे mean of the each sample x bar. तो first of all students, key formula is used here. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे हम लोग टोटल सैंपल्स को, और इसको आपने डिवाइड करना है पॉपुलेशन साइज पे. पॉपुलेशन साइज इज 4, और 4 को जब 16 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, और 4 मींस कि आपने ईच वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन इसको राइट करेंगे 4 टाइम्स. तो आपकी फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉपुलेशन की 1 है, और 1 को आपने अपने सैंपल्स में राइट करना है 4 टाइम्स, 1 से लेके 4 तक. तो ये मैंने यहाँ पे 1, 1, 1 and 1, तो 4 टाइम्स इसको राइट किया है फर्स्ट पॉपुलेशन वैल्यू को. देन स्टूडेंट्स मेरे पास सेकंड वैल्यू जो है वो 3 है, और इसको भी मैंने 3 को 4 टाइम्स राइट करना है. तो आपके पास यहाँ पे 3, 3, 3 and 3, ये भी 4 टाइम राइट करना है. अपने सीक्वेंस को जो है वो मेंटेन करना है. और नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास 5 है, 5 को आपने अगेन आपने नेक्स्ट 4 टाइम्स इसको राइट करना है 5, 5, 5 and 5. और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स पॉपुलेशन में 7 है, और 7 को भी आपने 4 टाइम्स राइट करना है 7, 7, 7 and 7. तो ये आपके पास 16 सैंपल्स तक जो है वो आपने अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है. अगेन आपने 4 को स्टूडेंट्स डिवाइड करना है 4 पे, और आंसर इज 1. तो 1 मींस कि आपने ईच वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन जो है वो राइट करनी है 1 टाइम. तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 1 है, 1 को आपने राइट करना है 1 टाइम, अगेन 3, 5 and 7.
अगेन स्टूडेंट्स अपने सीक्वेंस को जो है आपने कंटिन्यू करना है 1 3 5 7 और अगेन आपने इसको राइट करना है 9 सैंपल्स के अंदर 1 1 3 5 7 और इसको राइट करने के बाद आपने अगेन जो है इसको 1 3 5 7 टिल द लास्ट सैंपल्स आपने इसको राइट करते जाना है। तो 1 3 5 7 तो इस तरह से आपके पास जो है वो आप विद रिप्लेसमेंट से 16 सैंपल्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो इट मींस कि आपके पास फर्स्ट सैंपल जो है 1 1 है साइज 2 का, सेकंड सैंपल आपके पास 1 3 है, थर्ड सैंपल आपके पास 1 5 है। इन द थर्ड कॉलम स्टूडेंट्स आपने मीन को कैलकुलेट करना है, सैंपल के मीन्स को कैलकुलेट करेंगे एक्स बार, और एक्स बार जो है वो आपके पास कैसे कैलकुलेट होगा, फर्स्ट सैंपल में आपके पास टू वैल्यूज हैं 1 1 1 1 को दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो 1 आपका मीन आ जाएगा फर्स्ट सैंपल का। सिमिलरली आपने सेकंड सैंपल 3 + 1 4 और 4 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 2। नेक्स्ट सैंपल आपके पास जो है 1 5 है, 1 5 में आपने ऐड करना है 1 + 5 6 6 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 3। सिमिलरली 1 + 7 8 8 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 4 और 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 2। सिमिलरली आपने ईच सैंपल्स का हर सैंपल्स का आपने मीन कैलकुलेट करना है और उसको राइट करते जाना है एक्स बार के कॉलम में 3 4 5 और नेक्स्ट में आपने 3 4 5 6 4 5 6 7। तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप में आपने सैंपल्स को ड्रॉ करके सैंपल्स के मीन्स को कैलकुलेट करना है और इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हम लोग सैंपल मीन्स को यूटिलाइज करेंगे और इसके लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स अपीयर ईच सैंपल, और उसको फ्रीक्वेंसी फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स जो है आपका स्टेप 1 इज कंप्लीटेड एंड बाय सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। Second step we have to prepare sampling distribution of sample mean x bar। ऑलरेडी हम लोग x bar sample means को कैलकुलेट कर चुके हैं और अपने फर्स्ट कॉलम में राइट करने हैं all sample means one time। We have the sample means 1 2 3 4 5 6 and 7। In the second column we write the frequencies, how many times each sample mean appear। 1 जो है वो आपके पास 1 टाइम अपीयर हो रहा है, इसको राइट करेंगे फ्रीक्वेंसी में 1, और सैंपल मीन 2 जो है वो अपीयर हो रहा है 2 टाइम्स, इसको राइट करेंगे 2। Sample mean 3 appears 3 times, 4 appear 4 times, sample mean 5 appears 3 times, 6 appear 2 times and 7 appears 1 time। And total करेंगे frequency का, there are the total 16 sample means, तो ये आपके पास total summation f equal to 16 होगा। In the third column we write the probability of each sample mean और relative frequency, और इसमें हम लोग इस कॉलम को हेडिंग करेंगे f of x bar। f of x bar में स्टूडेंट्स आप राइट करेंगे अपनी तमाम के तमाम probabilities of each sample। तो फर्स्ट आपके पास जो सैंपल मीन 1 है वो 1 टाइम अपीयर हो रहा है टोटल 16 में से, तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर इज 1 बाय 16। ये आपने फर्स्ट सैंपल मीन के अगेंस्ट राइट करना है, दिस इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट सैंपल मीन 1। सिमिलरली आपने 2 के लिए 2 डिवाइडेड बाय 16 और ये आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा। सिमिलरली आपने 3 डिवाइडेड बाय 16, ये 3 बाय 16, 4 डिवाइडेड बाय 16 और 3 डिवाइडेड बाय 16, 2 डिवाइडेड बाय 16 एंड 1 डिवाइडेड बाय 16। तो ये आपके पास जो है वो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है ऑफ ईच सैंपल मीन, और इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे। हर फ्रीक्वेंसी को टोटल पर डिवाइड किया गया और ये इसका सम जो है विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे आपके पास कंप्लीट हो जाएगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, और इसके मीन और वेरिएंस के लिए हम लोग नेक्स्ट 2 कॉलम्स को प्रिपेयर करेंगे और इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से x बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, और ये आपके पास नेक्स्ट कॉलम है एफ एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का, और इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो एक्स बार की सैंपल मीन की 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें 1/16 से आंसर 1/16, और नेक्स्ट आपके पास 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करें 2/16 से आंसर इज 4/16। सिमिलरली आपने इनको मल्टीप्लाई करते जाना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9/16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 9, 16/16, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15/16, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12/16 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7/16, और इसका आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पे 64/16 which is 4। और नेक्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट कॉलम x बार का स्केयर इनटू f ऑफ x बार। इट मींस कि आपने फर्स्ट कॉलम का जो है इसका स्केयर लेना है x बार का और इसको अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी f ऑफ x बार है। तो x बार का स्केयर यानी आपने 1 का स्केयर 1
और मल्टीप्लाई करेंगे 1/16 से, आंसर इज 1/16, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 2/16 से और ये आपके पास आ जाएगा 8/16। नेक्स्ट आपके पास 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 3/16 से और ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27/16। और सिमिलरली आपने मल्टीप्लाई करना है 4 का स्क्वायर करना है 16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 4/16 से और ये आपके पास आ जाएगा 64/16। और सिमिलरली यहाँ पे आपने नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75/16, 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 2/16, आंसर इज 72/16 और 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाय 1 49/16 और इसका सम आपके पास निकल आएगा समेशन x बार का स्क्वायर इनटू f ऑफ x बार विच इज 296/16। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको फ्रैक्शंस में ही कैलकुलेट किया है और इसलिए आपके पास यहाँ पे 16 जो है वो तमाम वैल्यूज़ में सेम है, तो आपने ऊपर वाले तमाम जो न्यूमरेटर में नंबर्स हैं उनको सिंपली आप ऐड कर दें तो ये आपके पास जो है वो टोटल आंसर आ जाएगा समेशन x बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का 64/16 और समेशन x बार का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार 296/16। तो इस कॉलम्स को प्रिपेयर करने के बाद देन हम लोग फाइंड करेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। First point, we calculate the mean of the sampling distribution of x bar and we have the formula mu of x bar equal to expected value of x bar equal to summation x bar dot f of x bar। और इसका आंसर राइट साइड पे स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट किया है, इसका अगेन मैंने रिजल्ट जो है यहाँ पे राइट कर दिया है विच इज़ 4। तो इसका आंसर 4 है, मीन आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार का 4। इन द सेकंड पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन x बार और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैलकुलेट करेंगे e ऑफ x बार का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट समेशन x बार का स्क्वायर डॉट f ऑफ x बार और आंसर इसका राइट साइड पे मैंने अगेन जो अभी हमने सम इसका कैलकुलेट किया है विच इज 18.5 और 18.5 को स्टूडेंट्स आप लोग पुट कर दें यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा e ऑफ x बार का स्क्वायर और ऊपर जो आपने मीन में कैलकुलेट किया है विच इज e ऑफ x बार विच इज इक्वल टू 4। दोनों जो है वो आप लोग यूज करेंगे अपने वेरिएंस के फॉर्मूला के अंदर और वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो आपके पास सिग्मा स्क्वायर x बार विच इज आल्सो डिनोटेड बाय वेरिएंस ऑफ x बार e of x bar का स्क्वायर माइनस e of x bar का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस ऑफ x बार। और इसमें अपनी वैल्यूज को पुट कर दें, e of x बार की जगह पे मैं पुट करूंगा 18.5 और e of x बार की जगह पे हम लोग पुट करेंगे विच इज 4 का होल स्क्वायर यूज करेंगे और देन आपके पास जो आंसर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x बार यानी सिग्मा स्क्वायर x बार विच इज 2.5। In the third point, student calculate करेंगे standard error of the sampling distribution of x bar। तो simply आपने अपने variance of x bar का जो है उसके root use करना है which is sigma x bar which is also called standard error of x bar, इसको standard error of x bar से denote भी करते हैं और इसके root use करेंगे 2.5 का तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.58। तो standard error of x bar 1.58, वेरिएंस जो है वो आपके पास आ जाएगा 2.5 और मीन ऑफ x बार जो है 4 है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद उसके मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग these formulas। Now in the third step we have to calculate the value of the population mean, variance and standard deviation and using the population values which are x values। x values students इसको कॉलम में राइट करेंगे 1 3 5 7 we have given the x values of the population values और इसका स्क्वायर यूज करेंगे x स्क्वायर, this is the next column। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49। और नाउ स्टूडेंट्स दोनों कॉलम्स का सम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे और समेशन x स्टूडेंट्स आपके पास 16 है और समेशन x स्क्वायर की वैल्यू 84 है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला और पॉपुलेशन का मीन का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, म्यू इक्वल टू समेशन x ओवर कैपिटल N। समेशन x की वैल्यू स्टूडेंट्स पुट कर दें 16 और 16 को डिवाइड करें 4 पे, आंसर इज 4। तो ये आपके पास फर्स्ट जो है वो पॉपुलेशन मीन जो है पॉपुलेशन वैल्यूज का कैलकुलेट कर लिया है। इन द सेकंड पॉइंट वी कैलकुलेट द पॉपुलेशन वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर और इसमें अपनी वैल्यूज को यूज करेंगे, पुट करेंगे सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 84 आपके पास समेशन x स्क्वायर की वैल्यू है टोटल और कैपिटल N आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 4 हैं
और समेशन x ओवर n जो है वो 4 है, 4 का स्क्वायर यूज करेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर विच इज 5। नाउ थर्ड पॉइंट पे स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सिंपली आपने जो है वो इसको डिनोट करना है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से स्क्वायर रूट ले लेंगे और आपने 5 का स्क्वायर रूट यूज करना है, आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2.24। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दीज फार्मूलाज ऑफ द पॉपुलेशन मीन की वैल्यू 4, पॉपुलेशन वेरिएंस 5 एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस 2.24 यूजिंग द x वैल्यूज 1357। The last step, step 4, we use the verification formulas for sampling with replacement। और राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स मैंने तमाम obtained results जो है इसको राइट कर दिया है, जो कि हम लोग अभी तक जो है रिजल्ट्स को फाइंड कर चुके हैं। n4 है स्मॉल n, आपका सैंपल साइज 2 है, मीन की वैल्यू कैलकुलेट की है पॉपुलेशन 4, पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया 5, सिग्मा की वैल्यू 2.24 और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं मीन ऑफ x बार इक्वल टू 4, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू 2.5 और सिग्मा एक्स बार विच इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार विच इज 1.58। और ये तमाम रिजल्ट्स जो है हम लोगों ने पॉपुलेशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट कर लिए और इनको यूज करेंगे अपने वेरिफिकेशन फार्मूलाज के अंदर। तो फर्स्ट मेरे पास जो फार्मूला है वेरिफिकेशन का मीन ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू और मीन ऑफ एक्स बार की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट की है 4 और जो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट किया और पॉपुलेशन मीन हमने ऑलरेडी अभी इन लास्ट स्टेप 3 में कैलकुलेट किया है 4, तो दोनों के रिजल्ट सेम है। तो पहली वेरिफिकेशन आपके पास यहाँ पे वेरीफाई होगी है। सेकंड वेरिफिकेशन जो है वो आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स बार के लिए सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर n और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू पुट करते हैं विच इज 2.5 और सिग्मा स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस 5 है और सैंपल साइज किसको डिवाइड कर दें 2 पे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2.5। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है यहाँ पे इक्वल है 2.5। तो सेकंड पॉइंट जो है वो भी हमारा क्लियर है, वेरीफाई हो गया है। और थर्ड पे हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार यानी सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट n। तो सिग्मा एक्स बार की वैल्यू स्टूडेंट्स यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1.58 और सिग्मा की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन 2.24 पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट n यानी रूट 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो भी सेम हैं फॉर स्टैंडर्ड एरर के लिए 1.58 एंड 1.58। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अपने तमाम रिजल्ट्स को जो है वो वेरीफाई कर लिया है, पॉपुलेशन रिजल्ट्स को और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के जो भी रिजल्ट्स हमने निकाले उनको कंपेयर किया यूजिंग वेरिफिकेशन फार्मूलाज को। तो दीज आर द 4 स्टेप्स जिसमें हमने अपने क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट किया और वेरीफाई किया अपने रिजल्ट्स को। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं अपने तमाम के तमाम मीन्स को, वेरिएंसेस की वैल्यूज को और स्टैंडर्ड एरर्स को और उनको कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग दीज वेरिफिकेशंस। In this lecture an important exercise question has been discussed और इसमें मैंने 4 steps को फॉलो किया और अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई किया। इन द फर्स्ट स्टेप मैंने सैंपल्स ड्रॉ किए और सैंपल के मीन्स को कैलकुलेट किया। इन द सेकंड स्टेप मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर किया और वहाँ पे मीन और वेरिएंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया। और इन थर्ड स्टेप स्टूडेंट्स मैंने पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस को कैलकुलेट किया और देन फिर इन द फाइनल स्टेप जिसमें मैंने वेरीफाई किया अपने रिजल्ट्स को और कंपेयर किया दोनों के रिजल्ट्स को। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।